Fine. So mucormycosis, before understanding that, we need to understand the fungus. So the fungus mucormycosis belongs to the family of Mucoromycotina. The family ka naam is Mucoromycotina, and it has 3 species. Okay, so एक है Rhizopus, the second one is Absidia, and the third one is Mucor. So there are 3 important species. ये सब important नहीं है when we see the clinical picture of it. There is not much difference between the presentation of these species, but overall we can say that there are 3 types of species. Third thing is where is this fungi present? So mainly this fungi is present, its spores are present. So if we can see clearly, उसके spores present होते हैं in the soil. It is present in the soil, and it is also found in air and dust, right? So there are 3 places. Yani if we ask कि reservoir क्या होता है इस fungus का, where is it present? Then it is mainly present in the soil. Apart from that, it is present in the air and dust. This fungus primarily affects the respiratory system and mainly the upper respiratory tract. Okay. Now this fungus may also lead to infection of the lungs. अगर ये upper respiratory tract involve करता है, तो later on we'll see that this causes a disease which is affecting the nose, affecting the orbit, and affecting the brain. Rhino-orbital cerebral disease. And if it affects the lungs, it is basically going to cause fungal pneumonia. So this is the basics of this fungus. Now, what is the morphology of mucormycosis? Why is this important? It is important because जब हम reports देखते हैं mucormycosis के, तो mucormycosis के reports में these are the points which are seen. The most important 5 points are that the hyphae of this fungus is broad. It has broad hyphae. Second important point is it is non-septate, or sometimes the word that we use is aseptate. So it is basically aseptate. Secondly, it has aerial sporangiospores, sporangium, spore sac, and rhizoids. We'll see this in a moment. So let us see this diagram. If we see this diagram correctly, the students might want to correlate this with microbiology जो उन्होंने पढ़ा था. It's all a clinical correlation. This lecture would be a clinical correlation of microbiology. इसमें ENT भी आएगा, इसमें opthal भी आएगा, सब कुछ mix है यहाँ पे. Medicine and surgery. So basically this is called the hyphae. इसको हम hyphae बोलते हैं. ये hyphae में कोई septate नहीं होते. It is aseptate. Aseptate. Then this is called the sporangiophore. This is called the sporangiophore. And this sac-like structure, this is called the spore sac or sporangium. Spore sac or sporangium. And inside this sporangium, you have the spores. And ये जो spores है, these are the spores which cause the disease, right? I just like to remind all the participants that at any point of time, एक भी अगर doubt हो, just put it in the chat box. I will attend to the doubt there and then, right? So no issues. You can interrupt me at any point of time. So this is the basic morphology. अभी इसी चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे देखते हैं? So this is how it is seen under the microscope. एक डाई यूज किया जाता है. That dye stains the fungus, and वो फंगस आपको ऐसा दिखता है. ये देखिए वही है. This is the sporangiophore, and this is the sporangium. This is the sporangium, right? So this is how it is seen. The sporangiophore, sporangium, this is how it is seen, right? Under the microscope.
दिस इज क्लियर. अब ये स्पोरेंजियम के अंदर इफ यू सी another beautiful image that we have, we can see that this is the sporangium, and यही sporangium जब break हो जाता है, you find the spores exiting. ये जो spores है, these are exiting. And this is another image where you can see the rhizoids, root-like structures. These are called rhizoids. Rhizoids का मतलब है root-like structures. तो जो फंगस के रूट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वैसे फंगस के भी रूट्स होते हैं. उस फंगस के रूट्स को हम बोलते हैं राइजोइड्स. बिकॉज इफ वी रिमेंबर, हमने पढ़ा था 11th एंड 12th में, देयर आर 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमैलिया. पहले फंगाई को हम प्लांट्स में रखते थे, तो फंगाई के भी रूट्स होते थे. देन वी अंडरस्टूड दैट दे आर एक्चुअली नॉट प्लांट्स, तो फिर हमने उनके रूट्स को बोल दिया rhizoids. So this is how it looks like. Again, a quick revision. इसके पहले अपन ने क्या देखा? We saw that there is a fungus, उसके sporangiophore है and sporangium है. And later on, what are we seeing? We are seeing that वो sporangium का structure कैसा है? It is like a sac. एक sac-like structure है. And इस sac-like structure के ऊपर spore formation, इसके अंदर spore formation होता है and spores come out. The spores come out. Right? Now, next topic is the types of mucormycosis. ये ऊपर हमने जो देखा, which was the morphology. अब over these many years, usually जो first case of mucormycosis मिला था हमको, that was somewhere around in 1800s. 1800s में the first case of mucormycosis was diagnosed. Now this first case of mucormycosis that was diagnosed, उसके बाद हमको बहुत सारे केसेस मिले हैं, and Harrison in its recent edition has classified mucormycosis into 5 types. वही 5 types यहाँ पे देखने को मिल रहा है. So there is rhino-orbital cerebral mucormycosis, जिसको हम बहुत commonly ऐसा लिखते हैं ROCM, rhino-orbital cerebral mucormycosis. This in India is the most common presentation. The most common presentation is rhino-orbital cerebral mucormycosis. Then, second is pulmonary mucormycosis. That pulmonary का मतलब होता है lungs, right? So if there is lung involvement, then that type of mucormycosis is pulmonary mucormycosis. Then we have gastrointestinal, जो इंडिया में नहीं देखने को मिलते, बट डायरेक्टली लिवर इन्वॉल्वमेंट के साथ भी म्यूकोरमाइकोसिस प्रेजेंट होता है. सो दैट लिवर इन्वॉल्वमेंट म्यूकोरमाइकोसिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस, हिपैटिक म्यूकोरमाइकोसिस. डिसेमिनेटेड का मतलब है पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाना. व्हाट डज दैट मीन इज दैट अगर हमारे पास ये बॉडी है एंड बॉडी के ब्लड के अंदर ये फंगाई ग्रो कर जाए, so through the mechanism of blood, it can reach to all places of the body. Very importantly, it will reach the brain, and this is very fatal. Brain में अगर mucormycosis हो जाता है, तो it is a fatal condition. So the most common site of dissemination is brain. बहुत easily brain को चला जाता है वो. Again, cases rare है. Most common case तो हमेशा rhino-orbital cerebral mucormycosis ही है, involving the face. But brain का involvement is also seen. And then you have miscellaneous mucormycosis, जैसे bone है, trachea है, kidney है, mediastinum है, peritoneum है. Again, kidney का involvement भी rare है, but because इतने सारे cases अभी देखने को मिल रहे हैं, we are even seeing cases of kidney. So kidney में fungus involvement, very rare presentation, but we are seeing a lot of cases of kidney being affected with mucormycosis. Clear? So these are the types of mucormycosis, right? Again, pointing out, हमारा main focus of discussion रहेगा इस first topic पे, rhino-orbital cerebral mucormycosis, because that is what is the most common presentation. The most common presentation, and वही हमको गुजरात में जब हमने epidemic declare कर दिया mucormycosis को, यही condition देखने को मिल रही है. This is the main condition. So, before going into the understanding of what is rhino-orbital cerebral mucormycosis,
Let us first understand the risk factors for म्यूकोरमाइकोसिस. ठीक है, अब 4 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं. फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज डायबिटीज मेलाइटिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. डायबिटीज मेलाइटिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. क्यों? बिकॉज इंडिया is the diabetes capital of the world. India में there is the largest number of diabetes के cases. That is the most important risk factor because India में diabetes के cases ही इतने ज़्यादा है. And the second point is that India is worst hit. The second point is that India is worst hit with कोविड सेकेंड वेव. ये 2 रीजंस के वजह से इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. We'll come to that later. Basically, these 2 important things. So, diabetes mellitus is the most important risk factor. Second is hematopoietic stem cell transplantation. Hematopoietic stem cell transplantation को अगर हमने समझने जाए, let us see what is hematopoietic stem cell transplantation. So, हिमैटोपोएटिक, हिमैटो का मतलब है ब्लड, पोएसिस का मतलब है फॉर्मेशन. सो हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स यानी those cells in the bone marrow which form other cells of the blood, that is hematopoietic cells. जब there is blood cancer, तो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम यही हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करते हैं. हम ये जो स्टेम सेल्स है, इन स्टेम सेल्स को वी ट्रांसप्लांट. नाउ 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर देयर इज ब्लड कैंसर, इम्यूनिटी हमेशा डाउन हो जाती है. एंड जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो इम्यूनिटी को डाउन करके रखती है. So both of these factors lead to an immunocompromised state. Immunity हमेशा down रहेगी. So that is hematopoietic stem cell. And third risk factor is malignancies. Again, malignancy में भी immunity, because of these growth of the cancer cells, the immunity is dysregulated. Immunity का imbalance हो जाता है. So that is also a risk factor. And lastly, patients with prolonged neutropenia. बहुत long time से neutropenia है. Again, if we understand the word neutropenia का मतलब है मतलब neutrophils. Because we know WBCs have types. One is neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil, so neutrophils. And penia means decrease. So for a long period of time, अगर neutrophils decreased state में रहेंगे body में, so that is also a risk factor for mucormycosis, right? So this is the 4th risk factor. तो हमने 4 risk factors देखे. Now what is important here is that all of these risk factors, whether it is diabetes mellitus, malignancy, hematopoietic stem cell transplant, or patients with prolonged neutropenia, एक common link in सब में एक ही चीज है, that all of these cases are states of immunocompromise. यानी all of these cases have decreased immunity. All of these cases have decreased immunity. Immunity कम है इस केस में, right? All of these cases have decreased immunity. So these are the risk factors for mucormycosis. And never forget diabetes mellitus. Now, what are the factors in the body which help in growth of mucor? अगर म्यूकोर बॉडी में आ जाता है तो हमारी इम्यूनिटी फाइट करनी चाहिए. बट क्या रीजंस है जिस वजह से फिर भी हमको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? So, let us understand that. What I'm trying to say is that अगर म्यूकोर का जो फंगस है that enters inside the body,
that enters inside the body. So what are the factors जिस वजह से there is formation of mucormycosis? Because हमने पढ़ा है that just because कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर करता है doesn't mean वो इन्फेक्शन हो जाए, because your immunity always tries to fight it. तो ये क्या रीजंस है जिस वजह से इम्यूनिटी बराबर फाइट नहीं कर पाती? तो फर्स्ट फैक्टर तो हमने पढ़ लिया. पहला फैक्टर इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, immunity is already less. This is the first important risk factor. The second important risk factor is a condition which we call as hyperglycemia. What is the meaning of hyperglycemia? Hyperglycemia means increased blood glucose, which we see in diabetes mellitus. Diabetes mellitus में हमको जो देखने को मिलता है वो यही है, hyperglycemia. Now our question is, why is increased blood glucose a risk factor for mucormycosis? क्यों mucormycosis होता है because of hyperglycemia? तो अगर हमको उसको समझना है तो हमको बेसिकली समझना पड़ेगा ये चीज. This is the cell of the body. ये उसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल है. एंड ये है वो फंगस. ये फंगस को इस सेल को इन्वेड करना है. अगर इस फंगस को उस सेल को इन्वेड करना है तो दिस फंगस विल हैव टू कंबाइन विद द सेल. टू कंबाइन विद द सेल, दिस फंगस यूजेस अ लाइगेंड, एक लॉकिंग एजेंट यूज करता है. एंड वो लॉकिंग एजेंट एक दूसरे एजेंट के साथ बाइंड करता है सेल के ऊपर. इट इज समवॉट लाइक, अगर हमारे पास एक सी है, सी शोर है, और वहां पे एक शिप आया है, तो व्हाट डज द शिप डू? शिप अपने उसमें से एक एंकर थ्रो करता है. वो एंकर जाके सी बेड में फंस जाता है. तो द शिप रिमेन्स एट द सी बेड, सी शोर पे रह जाता है. या इट कुड ऑल्सो बी थॉट ऑफ लाइक, जब आप दरवाजा बंद करते हो, दरवाजा बंद करने के बाद अब वो फिर से खुले नहीं दरवाजा, इसलिए आप एक कड़ी लगाते हो उसमें, यू लैच इट. सो दिस इज और लॉकिंग मैकेनिज्म, जिससे फंगस अटैच रहता है सेल के साथ, वरना फंगस को इम्यूनिटी खा जाएगी. तो फंगस कैसे अटैच होता है सेल के साथ? तो फंगस के पास होता है एक रिसेप्टर, जिसको ये रिसेप्टर, एंड एक रिसेप्टर यहां पे होता है जो बॉडी के सेल पे होता है. रिमेंबर, दिस इज फंगस एंड दिस इज द सेल ऑफ द बॉडी, राइट? अब ये जो फंगस पे रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर इज कॉल्ड COTH रिसेप्टर, COTH रिसेप्टर, COTH लाइगेंड. और ये जो रिसेप्टर है एपिथेलियम के ऊपर, सेल, बॉडी के सेल के ऊपर, इसका नाम है GPR78. GPR78. हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इफ यू सी क्लियरली, when the blood glucose increases, this glucose activates the ligand and it activates the GPR78 receptor. Yani glucose will not only activate the ligand with which fungus will bind, it will also activate the receptor to which the fungus binds. मतलब रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो गया और जिससे वो फंगस बाइंड करने वाला था वो दोनों प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए. तो उस वजह से फंगस का इस वजह से द फंगस विल वेरी इजीली बाइंड टू द एपिथेलियम. दैट इज द रीजन ग्लूकोज हाई होना प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज ग्लूकोज जब हाई होता है उस वजह से फंगस का बाइंडिंग कैपेसिटी विथ द बॉडी सेल्स इंक्रीजेस. The capacity of the fungus to bind with the body cells increases. Clear? So that is the second risk factor, hyperglycemia.
थर्ड रिस्क फैक्टर इज इंक्रीज्ड आयरन. बॉडी में आयरन हाई होना, सीरम में आयरन हाई होना. ये क्यों? बिकॉज जो आपका फंगस है उसको अगर ग्रो करना है तो उसको चाहिए आयरन. अगर ब्लड में आयरन ऑलरेडी हाई होगा तो दैट आयरन विल बी टेकन अप मोर बाय द फंगस एंड फंगस का ग्रोथ बेटर हो जाएगा. सो फंगस के ग्रोथ के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस, वी रिक्वायर आयरन Fe2+. And that Fe2+, if it is present in the serum in high amounts, तो फंगस का ग्रोथ will be accelerated. ज्यादा हो जाएगा फंगस का ग्रोथ. प्रॉब्लम इन कोविड इज, कोविड में क्या प्रॉब्लम होता है हमने पढ़ा रहेगा, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये. कोविड में इंटरल्यूकिन 6 इज इंक्रीज्ड. वी ऑल नो दिस. हम सब ने सुना है इंटरल्यूकिन 6 इंक्रीज हो जाता है. What does interleukin 6 do? It increases serum iron. Interleukin 6 के वजह से iron in the blood increases. ये आयरन का एक मार्कर होता है फेरिटिन. इसीलिए आपने देखा रहेगा इनिशियली हम एक इंफ्लेमेटरी मार्कर करते हैं फेरिटिन करके. तो कोविड में फेरिटिन इज हाई. Why is ferritin high? Because interleukin 6 is high. So interleukin 6 बढ़ता है तो सीरम आयरन बनता है, और जो सीरम आयरन जब बढ़ जाता है that causes growth of fungus. तो दो चीजें हो गई. एक तो ब्लड में शुगर लेवल्स हाई है, दूसरा ब्लड में आयरन हाई है. शुगर लेवल हाई होने की वजह से फंगस इजीली बाइंड कर सकता है, तो वो चिपक भी गया, और उसके ग्रोथ के लिए ब्लड में आयरन भी हाई है तो उसका ग्रोथ भी हो रहा है. सो बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर अ प्रॉब्लम इन कोविड. अगर कोविड में डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो जाता है तो कोविड के स्ट्रेस की वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, बिकॉज ग्लूकोज बढ़ता है अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, वी नो फ्रॉम फिजियोलॉजी. एंड सेकेंड इज दैट आयरन लेवल्स विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंटरल्यूकिन 6. तो ये दो चीजों की वजह से देयर इज ग्रोथ ऑफ फंगस. एक थर्ड रिस्क फैक्टर पढ़ा हमने ऑलरेडी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट. अगर इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है तो फंगस का अफेक्ट ज्यादा दिखेगा. एंड द लास्ट रिस्क फैक्टर इज एसिडोसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडोसिस? एसिडोसिस मीन्स डिक्रीज इन ब्लड पीएच, यानी ब्लड का पीएच कम होगा, लेस देन 7.4 7.5, राइट. 7.3 to 7.4 से कम होगा ब्लड का पीएच. नाउ ब्लड के पीएच कम होने से, यानी एसिडोसिस होने से क्या प्रॉब्लम आएगा? सो लेट अस सी दैट. इफ द ब्लड पीएच डिक्रीजेस, यानी हमको केमिस्ट्री से पता होगा ब्लड पीएच डिक्रीज होना मतलब प्रोटॉन्स H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो दिस H+ इट विल बाइंड टू ट्रांसफेरिन. और आपको याद होगा फिजियो और पैथो में से दैट ट्रांसफेरिन जो है इट बाइंड्स टू आयरन. अब अगर ट्रांसफेरिन में आप H+ ऐड कर दोगे तो आयरन डिसोसिएट हो जाएगा. ये है ट्रांसफेरिन, इससे बाउंड होता है आयरन. जब इसके साथ H+ बाइंड करेगा तो H+ will bind to transferrin, H+ will bind to transferrin, and what is released? Iron. And फिर से free iron मिल गया. ये free iron फिर से will help in the growth of the fungus, right? So all of these, because of all of these causes, there is a growth of the fungus. And never forget this, diabetics are always at a risk of acidosis. Diabetics are always at a risk of acidosis. Q. Because when diabetes is uncontrolled,
डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है, तो बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग कीटोन बॉडीज, एंड कीटोन बॉडीज आर एसिडिक। तो इतने हाई कीटोन बॉडीज के वजह से द पेशेंट सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन नोन एज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्लियर? सो ऑल इन ऑल हमने क्या देखा? हमने देखा डायबिटीज में क्या चीजें हो रही है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, उस वजह से फंगस इजीली बाइंड कर रहा है। सेकेंड, डायबिटीज अगर प्रेजेंट करे कीटो एसिडोसिस के साथ तो एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस हो रहा है तो उस वजह से क्या हो रहा है, देर इज रिलीज ऑफ आयरन, एंड आयरन की वजह से फंगस का ग्रोथ बढ़ रहा है। एंड लास्टली आपने देखा दैट अगर सीरम आयरन ज्यादा है, which happens in the cases of COVID, IL-6 बढ़ने से सीरम आयरन बढ़ता है। सीरम आयरन की वजह से क्या होता है, अगेन फंगस का ग्रोथ होता है। एंड इसका मार्कर क्या बताया मैंने, फेरिटिन। फेरिटिन इज द मार्कर फॉर इंक्रीज सीरम आयरन। हम ये बहुत कॉमनली करते हैं, IL-6 भी मार्क करते हैं, फेरिटिन भी मार्क करते हैं। इसीलिए अगर एक पेशेंट है, इसके एंड में व्हाट शुड यू नो, अगर एक पेशेंट है हु इज कोविड पॉजिटिव, आरटीपीसीआर रैपिड से कोविड पॉजिटिव है, डायबिटीज मेलाइटिस पॉजिटिव, डायबिटीज मेलाइटिस है उसको, वेरी हाई इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स, इंटरल्यूकिन 6 वेरी हाई, हाई फेरेटिन, वेरी हाई लेवल ऑफ फेरेटिन, तो इन सब की वजह से क्या होगा, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ म्यूकोर, there is a very high risk of mucormycosis. So this is the entire spectrum of the risk factors. Again PPT पे वापस जाते हैं. So we see, हमने देखा immunocompromised state, and now we see factors in the body which help in the growth of mucor. पहला है hyperglycemia, high blood glucose. अच्छा, we know this fact, हमने मेडिसिन में पढ़ा है that how do you state hyperglycemia? तो 3-4 पैरामीटर्स होते हैं उसके. Fasting blood sugar, if it is more than 126, or random blood sugar is more than 200, or postprandial PP2BS is more than 200, everything in milligram per deciliter, then all of this is a sign of hyperglycemia. मतलब अगर आप सिर्फ नॉर्मल ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज मेजर कर रहे हो एंड उसमें आपका वैल्यू मोर देन 200 आ गया, दैट मीन्स द पेशेंट इज हाइपरग्लाइसीमिक। 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका ग्लूकोज 200 से ज्यादा आ रहा है, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। यानी और 8 घंटे फास्ट करने के बाद अगर आपका ग्लूकोज लेवल्स 126 से ज्यादा आ रहा है, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डायबिटीज में जो हम मेजर करते हैं, HbA1c, HbA1c लेवल्स। अगर HbA1c लेवल्स इज मोर देन 6.5 तो हम इसको बोलते हैं पुअर कंट्रोल, पुअर कंट्रोल। अगर आप इस पॉइंट पे नोट्स बना रहे हो तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, FBS more than 126, RBS more than 200, PP2BS more than 200, and HbA1c more than 6.5. All of these show poor control of diabetes. डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसिडोसिस, मतलब ब्लड पीएच कम होना। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हाई सीरम आयरन लेवल्स, मैंने बता दिया। एंड थर्ड पॉइंट, डिक्रीज्ड एक्शन ऑफ फैगोसाइट्स। अब फैगोसाइट्स क्या होते हैं, अगेन लेट अस गो बैक टू पैथो। हमको पता है दैट हमारे पास ऐसे अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, और एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। छोटा न्यूट्रोफिल होता है, बड़ा मैक्रोफेज होता है, बट बोथ ऑफ देम आर वेरी हंग्री, दोनों को ही बहुत भूख लगी होती है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो मैक्रोफेज भी उसको खाता है, न्यूट्रोफिल भी उसको खाता है। These cells are called phagocytes. These cells are called phagocytes, right? Phagocytes यानी दो सेल्स जो फंगाई को खाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो भी है सबको खाते हैं। वो इम्यूनिटी का एक रिस्पॉन्स है। अब स्टेरॉइड्स जो हम यूज करते हैं बहुत सारी कंडीशंस में मेडिसिन में,
ये स्टेरॉइड है एक एंटी इंफ्लामेटरी, यानी वो आपके बॉडी में इंफ्लेमेशन कम करता है। कैसे? तो ये जो स्टेरॉइड है वो इनहिबिट करता है, रोक देता है फैगोसाइटोसिस ऑफ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। अब अगर हम स्टेरॉइड को कोविड में देते हैं तो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बिकॉज स्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेशन करेंगे, यानी इट विल स्टॉप फैगोसाइटोसिस, यानी आपके बॉडी में जो आपके ही मैक्रोफेजेस आपके ही लंग को डैमेज करने जा रहे थे अब वो नहीं करेंगे। सो दैट इज गुड। प्रॉब्लम क्या है? अगर हम स्टेरॉइड का मिस यूज करेंगे, यानी माइल्ड केसेस ऑफ कोविड में स्टेरॉइड देंगे, तो क्या होगा? माइल्ड केसेस ऑफ कोविड में स्टेरॉइड देने से अननेसेसरीली फैगोसाइटोसिस कम हो जाएगा, यानी अननेसेसरीली हम इम्यूनिटी कम करेंगे। और अगर इम्यूनिटी कम होगी तो फर्स्ट पॉइंट हमको याद है रिस्क फैक्टर का, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। सो स्टेरॉइड के यूज से प्रॉब्लम क्या होगा? एंटी इंफ्लेमेशन होगा, और एंटी इंफ्लेमेशन की वजह से फेगोसाइटोसिस कम हो जाएगा, एंड फेगोसाइटोसिस कम होने की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस वाज द रोल ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड पे और डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड इज अ वेरी गुड ड्रग टिल इट इज यूज्ड विद एन इंटेंशन। अगर स्टेरॉइड हम यूज कर रहे हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं, अब्यूज नहीं कर रहे, if we are using it and not abusing it, it is a wonderful drug. Problem क्या है? Problem ये है that we have been abusing steroids in COVID-19. Why? First, we are prescribing it in mild cases. Prescribing in mild cases. क्योंकि आजकल डॉक्टर्स को ऐसा लगता है दैट अगर हम स्टार्टिंग से स्टेरॉइड नहीं देंगे, माइल्ड केसेस में स्टेरॉइड नहीं देंगे, तो माइल्ड का केस मॉडरेट बनेगा, मॉडरेट का केस सिवियर बनेगा। बट दैट इज रॉन्ग। स्टेरॉइड देने से उल्टा ये प्रोसेस बढ़ जाता है, बिकॉज स्टेरॉइड अगर हम माइल्ड केसेस में देते हैं तो हायर चांसेस होते हैं माइल्ड का मॉडरेट में कन्वर्ट होने। सो नेवर प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड्स इन माइल्ड केसेस. So that is the first important thing. Second important thing, prescribing in mild cases is the first important thing. Second, जो स्टेरॉइड का अब्यूज हो रहा है वो ऐसा है that स्टेरॉइड को हम हाई डोसेस में दे रहे हैं. We are giving high doses of steroid. Now, steroid in the body increases blood glucose. सो अगर स्टेरॉइड हम हाई डोसेस में देंगे तो इस वजह से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज इन द बॉडी विल इंक्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड जितना ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा उतने चांसेस होंगे फंगल इंफेक्शन के. राइट? सो दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्टेरॉइड का माइल्ड केसेस में यूज होना, सेकेंड स्टेरॉइड का हाई डोज में देना, एंड थर्ड, एंड ये जो मैं थर्ड पॉइंट बोलने वाला हूं दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट एंड सेकेंड. चलो आप माइल्ड केसेस में स्टेरॉइड दे भी रहे हो, नहीं देना चाहिए वैसे तो, बट अगर दे भी रहे हो तो कोई बात नहीं. ऑलवेज एंश्योर दैट स्टेरॉइड इज गिवन आफ्टर 5 days of COVID. Never give steroids in the first 5 days of COVID. Very, very important. Steroid agar is given in first 5 days, तो it creates more problems than solving it. कोविड ठीक नहीं होगा, कोविड एग्जैजरबेट होगा, एग्रेवेट होगा, क्योंकि हम इम्यूनिटी को स्टार्टिंग में डाउन कर रहे हैं. वो नहीं करना है. स्टार्टिंग में इम्यूनिटी इज एक्टिंग अगेंस्ट द वायरस. हमें इम्यूनिटी को डाउन लेटर हाफ में करना है, 5 to 10 days, बिकॉज तब क्या होगा? इम्यूनिटी इज एक्टिंग अगेंस्ट द लंग, उधर हम स्टेरॉइड देंगे. सो 3 reasons क्यों स्टेरॉइड प्रॉब्लम कर रहा है कोविड में. फर्स्ट, वी आर प्रिस्क्राइबिंग स्टेरॉइड फॉर माइल्ड केसेस, नहीं करना चाहिए. सेकेंड, we are giving steroids in the first 5 days.
माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर कोई भी केस में हम फर्स्ट 5 डेज में स्टेरॉइड दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए. एंड थर्ड, हम स्टेरॉइड के हाई डोसेस दे रहे हैं. कभी भी हाई डोसेस के साथ हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट हो सकता है, लंग बहुत डैमेज है तो स्टेरॉइड हाई डोसेस में देना पड़ेगा. बट हाई डोज में देने के साथ वी शुड मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज. अगर हम इसके साथ इंसुलिन ना दे तो प्रॉब्लम क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज विल शूट अप एंड दैट विल क्रिएट अननेसेसरी super added infections. Clear? So these three are the steroids के abuse जो हम कोविड में कर रहे हैं. एंड इस स्टेरॉइड का अब्यूज along with diabetes, यानी पेशेंट को पहले से डायबिटीज है, मतलब ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड है, on that you are giving steroid in mild cases or steroid in the first 5 days. तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से होगा that we are going to increase blood glucose 600, 700, 800. हम जब ग्लूकोमीटर यूज करते तो वो रीडिंग भी नहीं था, वो डायरेक्टली बोलता है हाई. वो रीड भी नहीं कर पाता, इतने हाई लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज हो जाते हैं ब्लड में. दिस इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर म्यूकोरमाइकोसिस. इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? इंडिया. इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल. उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? गुजरात. गुजरात इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया. हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज इन गुजरात. India is in the world and Gujarat is leading in India. So because of all of these reasons, mucormycosis का epidemic हो रहा है at this moment in India, adverse which are causing mucormycosis. So इसके आगे COVID-19 and mucormycosis. Actually मैंने ये explain कर दिया है. Some questions. Mucormycosis is a rare disease. कुछ कंसल्टेंट्स जो मेरे टीचर्स हैं, मेरे प्रोफेसर्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि उनके पूरे लाइफ टाइम में 20 इयर्स के प्रैक्टिस में उन्होंने 3 या 4 म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखे होंगे. एंड नाउ दे आर सेइंग दैट विद इन 2 मंथ्स दे हैव सीन 300 केसेस. मतलब इट इज अ रेयर डिजीज. बट फिर इतना रिसेंट सर्ज क्यों हो रहा है? सो दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19. एंड नॉट जस्ट कोविड-19, कोविड-19 प्लस डायबिटीज प्लस स्टेरॉइड्स. इस वजह से सो ये लिंक क्या है कोविड-19, निमोनिया और फंगस के बीच में? सो लेट अस अंडरस्टैंड द रीजंस. मैंने बोल दिया ये चीजें, बट लेट्स जस्ट रीड इट थ्रू. इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड गुजरात इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया. Second, there are many patients who are diabetic and they are unaware of the problem. बहुत बार क्या होता है, पहले डायबिटीज कैसे डिटेक्ट होता था? डायबिटीज की वजह से नम्बनेस आ जाता था फेस पे, गैंग्रीन होता था, एंड फिर पेशेंट्स आते थे कि हमको और फिर पता चलता था कि उनको डायबिटीज है. बिकॉज डायबिटीज के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते, उसके साइंस एंड सिम्टम्स लेट आते हैं एंड तब कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं पेशेंट. तो पहले क्या होता था? कॉम्प्लिकेशंस यूज्ड टू बी गैंग्रीन, कि गैंग्रीन हो गया है, फिर पेशेंट आया है एंड वी नो नाउ देन वी गेट टू नो इफ द पेशेंट इज डायबिटिक. अभी क्या हो रहा है? अभी पेशेंट इज कमिंग विद म्यूकोर एंड देन वी आर गेटिंग टू नो इट्स डायबिटिक. पहले गैंग्रीन, फेशियल नमनेस, न्यूरोपैथीज के साथ पेशेंट आता था एंड वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड देन कि डायबिटीज है उसको. अभी पेशेंट का प्रेजेंटिंग सिम्टम डायबिटीज का म्यूकोरमाइकोसिस हो गया. इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के साथ जिनको पता ही नहीं था डायबिटिक है वो. दैट मीन्स दैट दे डिड नॉट टेक एनी मेडिकेशन. देयर ग्लूकोज वाज कॉन्स्टेंटली 500, 400, 300, so on and so forth. All of this is definitely going to create a problem. So many patients present with mucormycosis and then are diagnosed with diabetes. And many patients of diabetes mellitus present with ketoacidosis. इतने गंदे डायबिटीज के साथ आते हैं that वो directly ketoacidosis में present करते हैं, acidotic state में present करते हैं. Right? Fine. The next set of reasons is steroid. First, steroid is being used in the first 5 days of COVID. मैंने बताया ये that is a risk factor because अगर steroid first 5 days में देंगे तो immunity को unnecessarily down करेगा, which we do not want. Second, steroid is being overused even in mild cases. So that is leading to mucormycosis. And third point is COVID-19 में ferritin levels increase होते हैं. What happens if ferritin levels increase होते हैं?
फेरेटिन लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में आयरन लेवल्स बढ़ जाते हैं, एंड जब आयरन लेवल बढ़ता है तो एज आई टोल्ड यू ग्रोथ बेटर होता है म्यूकोर का। एंड लास्टली जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गए हैं, दैट इज इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ GRP78 एंड COTH रिसेप्टर्स। ये जो दो रिसेप्टर्स मैंने बताए, एक फंगस के ऊपर एक सेल के ऊपर, इस वजह से सेल इज बाइंडिंग टू द फंगस वेरी इजीली। तो फंगस बाइंड भी अच्छे से हो रहा है, उसका ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है। स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनोसप्रेशन है तो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एक्ट भी नहीं कर रही है। तो कोविड में ऑल ऑफ दीज रीजंस की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, राइट? नाउ हाउ डू वी डायग्नोज म्यूकोरमाइकोसिस? We'll come to symptoms later कि symptoms क्या है म्यूकोरमाइकोसिस, we'll understand later। बट अगर सपोज आपके पास एक symptoms लेके आ रहा है जो हम बाद में देखते हैं और आपको लग रहा है कि म्यूकोर का केस है, तो आप कैसे डायग्नोस करोगे पहले वो देख लेते हैं। सो यू विल कलेक्ट स्पेसिमेन, ये आपको माइक्रो से याद होगा। तो स्पेसिमेन या सैंपल कौन सा याद यूज करेंगे अपने? एक्सियुडेट्स, यानी पस, सिक्रीशंस। कहां से? यूजुअली अगर एक वुंड है तो वुंड से ही निकाल लो, बट यूजुअली नोज से मिलेगा आपको, नोज से सिक्रीशंस मिलेंगे आपको, राइट? एंड सेकेंड, अगर आप नेजल एंडोस्कोपी कर रहे हैं, यानी हम गुजराती में जिसको बोलते हैं दूरबीन थी जांच करवानी, नाकમાં નાખીને दूरबीन નાખવાનું અને એનાથી ટુકડો લેવાનો, बायोप्सी, राइट? तो टिश्यू बायोप्सी अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी हमको पता चलेगा कि अगर पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं। कैसे? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में देखो म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा दिखता है। हमने स्टेन किया है, अगेन आपको अगर याद हो मैंने बताया था इसके पहले ही दैट ये हाइफी है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स है। अगर आप देखोगे हाइफी को क्लियरली देखोगे तो उसमें कोई भी सेप्टे नहीं है। सेप्टेट हाइफी कैसा होता है? सेप्टेट हाइफी ऐसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे सेप्टेशंस होते हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस में नहीं दिखता। म्यूकोरमाइकोसिस में सेप्टा ऐसा दिखता है, ए सेप्टेट हाइफी इज लाइक दिस, ए सेप्टेट। अगर सेप्टेट हाइफी है तो दैट इंडिकेट्स एस्परजिलस, जो दूसरा एक फंगस है एस्परजिलस, वो भी हमें कोविड में देखने को मिल रहा है। 3 इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, म्यूकोर जो सबसे ज्यादा है, एस्परजिलस एंड कैंडिडा। ये तीनों हमको देखने को मिल रहे हैं। एस्परजिलस में सेप्टे प्रेजेंट है, म्यूकोर में सेप्टे नहीं है। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपी। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं फंगस के डायग्नोसिस के लिए। कैसे? अगर आप क्लियरली देखो तो आपको एक बहुत फाइन फंगस का हाइफी दिख रहा है, बहुत ही फाइन फंगस का हाइफी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो तो आपको बहुत ही फाइन फंगस का हाइफी दिखेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अगर आप उसको क्लियरली देखोगे तो उसके अंदर आपको कोई भी सेप्टे नहीं मिलेंगे, तो इट इज एसेप्टेट, एसेप्टेट। अगर इस पूरे डिस्कशन के एंड में अगर आपको एक चीज याद रखनी है तो वो ये है कि फंगस इज एसेप्टेट। ये तो आपको याद रह ही जाएगा, म्यूकोरमाइकोसिस इज एसेप्टेट फंगस। दिस इज टिश्यू बायोप्सी। अगेन वेरी ब्यूटीफुल इमेज। टिश्यू के अंदर आपको फंगस के माइसीलियम दिख रहा है, फंगस के हाइफी दिख रहे हैं। अगेन उसमें कोई भी सेप्टे नहीं है, कोई भी स्ट्राइएशंस ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो दिस इज एब्सेंट, इट इज अगेन एसेप्टेट फंगल हाइफी। क्लियर? सो इससे हम डायग्नोसिस करते हैं म्यूकोर का। अनदर मेथड इज कल्चर। आप कल्चर भी कर सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो। द अगार विच इज यूज्ड इज सैबरॉड्स डेक्सट्रोज अगार, सैबरॉड्स डेक्सट्रोज अगार, SDA को यूज करते हैं हम, SDA, सैबरॉड्स डेक्सट्रोज अगार। एंड आपको दिख रहा है कि उस ये अगार है, दिस इज द अगार, एंड उस अगार के ऊपर आपको म्यूकोर दिख रहा है। एंड कैन यू क्लियरली सी ब्लैक कलर्ड, इसीलिए म्यूकोर को हम बोलते हैं ब्लैक फंगस, बिकॉज जब वो ग्रो करता है तो इट्स ग्रोथ अपीयर्स ब्लैक, इट इज ब्लैक इन कलर, सो इट इज द ब्लैक फंगस। क्लियर? सो दैट इज म्यूकोरमाइकोसिस, सैबरॉड्स डेक्सट्रोज अगार। फाइन। यही चीज हम जब सिम्टम्स देखेंगे तो पता चलेगा कि नेजल, नोज के सिक्रीशंस, नोज का म्यूकस
ब्लैक कलर का दिखता है इन म्यूकोरमाइकोसिस, बिकॉज उसका ग्रोथ नोज में हो रहा है, एंड दैट नोज का ग्रोथ विच इज ब्लैक इन कलर इज क्लिंचिंग डायग्नोसिस फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस उधर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। मैं आपको बताया था दैट हैरिसन में 5 ways of mucormycosis दिए हैं, 5 presentations. The first presentation is rhino-orbital cerebral mucormycosis. Second, pulmonary. Third, gastrointestinal. Fourth, disseminated. And fifth is miscellaneous. इनमें से दो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से दो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस और दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। सो दीज टू आर द मेन प्रेजेंटेशंस। नाउ राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो है, इट इज मोर कॉमन इन डायबिटिक्स, एंड अगेन नीडलेस टू से इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल, गुजरात इज डायबिटीज कैपिटल। तो कौन से केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं जो हम आज फोकस करने वाले हैं, जिसपे राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल। चलो, whenever we want to understand anything, we should understand it using dictionary and breaking the words down. Rhino का मतलब है nose, orbital का मतलब है orbit, and cerebral का मतलब है cerebrum. यानी it first affects the nose, then it goes to the orbit, and then it goes to the cerebrum. Nose से ऑर्बिट से सेरेब्रम। जैसे जैसे वो ऊपर ऊपर जा रहा है, नोज ठीक है, ऑर्बिट इन्वॉल्व हो गया तो विजन जाएगी, तो ज्यादा सिवियर हो गया, और वहां से अगर ब्रेन में चला जाएगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा जो और सिवियर हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। नाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा डिजीज। अब तक हमने सिर्फ फंगस पढ़ा, अब हम डिजीज पे जाते हैं। To understand the disease, we need to understand certain basics. Now, I know you all are in your 4th year. आप लोगों ने 3rd year में पढ़ा था ENT, and ENT में आपने पढ़ा था पैरानेजल साइनसिस, and आपने पढ़ा था ऑफ्थेल्मोलॉजी में ऑर्बिट। ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए, बिकॉज इसी लोकेशन पे म्यूकोरमाइकोसिस अफेक्ट कर रहा है। तो टू अंडरस्टैंड म्यूकोरमाइकोसिस द डिजीज, we need to understand the basics of the anatomy. So let us see paranasal sinuses. ये paranasal sinuses क्या होते हैं? Again, para मतलब parallel, nasal मतलब nose, and sinus मतलब cavity. These are cavities which are present parallel to the nose, and 4 टाइप के होते हैं वो। maxillary जो maxillary bone में होता है, फ्रंटल जो फ्रंटल बोन में होता है, स्फिनॉइड जो स्फिनॉइड बोन में होता है, और एथमॉइड जो एथमॉइड बोन में होता है। एथमॉइड के 2 टाइप्स होते हैं, एंटीरियर एथमॉइड एंड पोस्टीरियर एथमॉइड। उसी चीज को अगर हम डायग्राम में देखें तो लेट अस सी दिस वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। फेस दिख रहा है आपको, आप ब्लू में आपको देखो फ्रंटल साइनसिस दिख रहा है, ग्रीन में एथमॉइड साइनसिस है, येलो स्फिनॉइड साइनसिस, एंड जो सबसे बड़े वाले पिंक में दिख रहे हैं दे आर मैक्सिलरी, एंड दे आर ऑलवेज इन पेयर्स, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा हर एक के 2 होते हैं, राइट। अगर इसका हम एक्सरे निकाले, ठीक है, फर्स्ट एक्सरे आई विल शो यू, जिसमें हम पेशेंट का फेस डायरेक्टली एक्सरे फिल्म के आगे रख रहे थे, तो हमको ऐसा स्कल दिखेगा। इसको हम बोलते हैं कार्डवेल्स व्यू। आपको दिख रहा होगा कार्डवेल्स व्यू में, कार्डवेल व्यू के इसमें आपको दिख रहा रहेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, मैंने बनाया आउटलाइन ऑफ फ्रंटल साइनस, दिख रहा है आपको फ्रंटल साइनस, ये दूसरा भी फ्रंटल साइनस, दूसरी साइड पे दिख रहा है फ्रंटल साइनस। फिर ये रहा मैक्सिलरी साइनस, बड़ा सा साइनस है मैक्सिलरी साइनस, दूसरे साइड पे भी मैक्सिलरी साइनस, एयरफिल्ड है, इस वजह से ब्लैक कलर दिख रहा है। एथमॉइड साइनस, एथमॉइड दिख रहा है, वो जो पहले आपने ग्रीन ग्रीन में देखा था, ऊपर देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन में दिख रहा था आपको, ये ग्रीन, वही ग्रीन ये है एथमॉइड साइनस, राइट। स्फिनॉइड देखने के लिए आपको साइड से देखना पड़ेगा, लैटरल व्यू, आपको यहाँ पे दिखेगा स्फिनॉइड साइनस। इसमें भी फ्रंटल तो दिख ही रहा है, एथमॉइड भी दिख रहा है,
मैक्सिलरी भी दिख रहा है और साइड में आपको स्फेनॉइड साइनस भी दिखेगा। तो लैटरल व्यू, ये सब साइनसेस को एक व्यू में अगर आपको देखना होता है तो आप एक व्यू निकालते हो जिसको हम बोलते हैं वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू ऐसा होता है कि एज इफ आप स्कल को, हेड को ऐसे रखेंगे एज इफ आप पानी पी रहे हो। तो अगर आप ऊपर से पानी पी रहे हो तो आप ऐसे पानी पियोगे और वैसे आपका एक्सरे का फिल्म आएगा। आपको जो दिख रहा है, एक्सरे का डायरेक्शन दिख रहा है और स्कल का एंगल दिख रहा है। देखो स्कल ऐसे रखते हैं, हेड को हम ऐसे टिल्ट करते हैं और फिर हम एक्सरे निकालते हैं एंड उस एक्सरे में आपको ऐसा व्यू दिखेगा। इसमें सब साइनसेस दिख रहे हैं आपको। आपको मैक्सिलरी साइनस भी दिख रहा है, आपको फ्रंटल साइनस भी दिख रहा है, आपको एथमॉइड भी दिख रहा है, और आपको माउथ ओपन रखोगे तो आपको डीप में स्फेनॉइड दिखेगा, जो इसमें मार्क नहीं किया है बट वो होता इधर ही है, यहाँ पे होता है स्फेनॉइड जो आपको दिखेगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द वाटर्स व्यू, वाटर्स व्यू, ठीक है। तो वाटर्स व्यू इज द फाइनल डायग्नोसिस फॉर द साइनसेस। नाउ ये जो साइनसेस है वो नेजल कैविटी में 3 टर्बिनेट्स होते हैं। आपको याद होगा इंफीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट और सुपीरियर टर्बिनेट्स। उनके अंदर स्पेसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर मियटस, राइट। तो 3 टर्बिनेट्स होते हैं, 3 टर्बिनेट्स होते हैं और ये टर्बिनेट्स के अंदर आपके मियटस होते हैं। सो दे आर सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर टर्बिनेट है तो सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर मियटस भी होंगे एंड सबसे ऊपर होता है सुप्रीम टर्बिनेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस, ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत कॉमनली जनरल प्रैक्टिशनर्स, बहुत कॉमनली फिजिशियंस को ये एक फेस करना पड़ता है, क्वेश्चन ऑफ साइनोसाइटिस। बहुत कॉमन है साइनसाइटिस। क्या होता है साइनसाइटिस? साइनसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज साइनसेस जो ओपन हो रहे हैं ये मियटेसिस में। देखो ये मियटिस दिख रहा है आपको, ये सुपीरियर टर्बिनेट है, मिडिल टर्बिनेट है, इंफीरियर टर्बिनेट है। इनके अंदर मियटिसेस होंगे और ये जो मियटिस है उसमें जो साइनसेस ओपन हो रहे हैं वो साइनसेस इन्फ्लेम हो जाता है और जब वो इन्फ्लेम होते हैं उनमें म्यूकस अक्यूमुलेट होता है और म्यूकस अगर मैक्सिलरी साइनस में अक्यूमुलेट होगा तो कहाँ पेन होगा? चीक में। इसलिए जब कोल्ड होता है तो बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि चीक में भी पेन हो रहा है। क्यों? बिकॉज चीक के नीचे मैक्सिला बोन है और मैक्सिला के अंदर क्या है? मैक्सिलरी साइनस। बहुत कॉमनली पेशेंट्स बोलते हैं दैट कोल्ड हुआ है एंड कोल्ड के बाद हमको हेडेक हो रहा है सिवियर। अगर हम हेड आगे नीचे ऊपर पीछे करते हैं तो पेन बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज फ्रंटल साइनस जो है उसका अफेक्ट हो रहा है, इट इज कॉजिंग साइनोसाइटिस। तो साइनसाइटिस जो आपका बहुत कॉमन फीचर है कोल्ड में, बहुत सारे होम्योपैथिक रेमेडीज में आपका साइनसाइटिस इज बिकम्स अ सिम्टम। दैट सिम्टम इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसका एनाटॉमी क्या है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। टर्बिनेट्स होते हैं, उसके अंदर मियटिसेस होते हैं और मियटिस के अंदर ओपनिंग होता है साइनसेस का। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कौन से साइनस कहाँ पे ओपन होता है, बेसिकली ऐसा ही है। और ये ऑर्बिट है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट सिंपल। ये बोन्स से ऑर्बिट बनता है, फ्रंटल से बनता है, स्फिनॉइड, लेक्राइमल, एथमॉइड, मैक्सिला और जाइगोमैटिक, इतने बोन्स से बनता है ऑर्बिट। एक ऑर्बिट, वन ऑर्बिट जिसके अंदर आए है, इट इज मेड आउट ऑफ 6 बोन्स। 6 बोन्स के पार्ट से एक ऑर्बिट बनता है। बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुली मेड स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट। Now we come to, having understood anatomy, we come to this progression of rhino-orbital cerebral mucormycosis। यानी ये डिजीज प्रेजेंट कैसे होती है और प्रेजेंट होने के बाद उसका सिवियरिटी कैसे बढ़ता है। So most often than not, mucormycosis presents with eye pain and facial pain। पेशेंट विल कम टू यू, आंख में दुख रहा है, आंख में जलन हो रही है, आंख में से पानी आ रहा है, आंख लाल हो गई है, आंख सूज गई है, या चीक्स पे हेडेक हो, चीक्स पे पेन हो रहा है, हेड एक हो रहा है, नोज में पेन हो रहा है। These are the common presenting symptoms. Another common presenting symptom is this,
टूथ एक, दांत दुख रहा है। अभी यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स, दांत दुखता है, कोविड हो गया था 1 वीक पहले, अब दांत दुख रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा, होगा कुछ कैविटी हो गई होगी, तो पेशेंट गोज टू डेंटिस्ट। डेंटिस्ट फॉर 2-3 months बैक डेंटिस्ट ऑल्सो डिड नॉट नो कि म्यूकोरमाइकोसिस बहुत फैल चुका है, तो बहुत सारे पेशेंट्स टूथ एक्सट्रैक्शन होके आ जाते थे, बट म्यूकोरमाइकोसिस है, ये कैविटी थोड़ी ना है, तो टूथ एक्सट्रैक्शन से तो म्यूकोरमाइकोसिस ठीक होगा नहीं। तो पहले वो कोविड हुआ, फिर म्यूकोर हुआ, म्यूकोर की वजह से टूथ एक हुआ, टूथ एक की वजह से वो डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने टूथ एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, निकाल भी दिया, फिर भी पेन तो ठीक नहीं होगा बिकॉज फंगल इन्फेक्शन है वो, और फिर पेशेंट कम्स विथ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट बिकॉज पेशेंट प्रोग्रेसेस because you have not cured the disease, right? So toothache is very important symptom. Therefore, आजकल अगर आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके कोई भी पेशेंट में टूथ एक हो रहा है, it could be because of cavity, ठीक है, but always have a suspicion of mucormycosis. Send the patient to a ENT surgeon directly. डेंटिस्ट के पास भेजोगे तो भी वो यूजुअली वो लोग भी पहले ENT सर्जन के पास ही भेजेंगे, बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। म्यूकोरमाइकोसिस ठीक नहीं होगा तो कैविटी तो है ही नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस विल लीड टू ब्रेन इन्फेक्शन, राइट? तो टूथ एक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंट विद टूथ एक, राइट? देन आई में और क्या है, कंजंक्टिवल सफ्यूजन। व्हाट इज कंजंक्टिवल सफ्यूजन? सिंपल, कंजंक्टिवल मतलब कंजंक्टिवा, नो कंफ्यूजन, एंड सफ्यूजन मतलब इडीमा एंड रेडनेस। आई में इडीमा है, स्वेलिंग है, कंजंक्टिवा स्वोलन है और रेड है, राइट? लगता है कंजंक्टिवाइटिस है, बट कंजंक्टिवाइटिस नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। आप देखोगे तो लगेगा कंजंक्टिवाइटिस है, सेंड टू ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट इमीडिएटली। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट डिटरमाइन की एक म्यूकोरमाइकोसिस लग रहा है कि कंजंक्टिवाइटिस है, ठीक है, बट कंजंक्टिवाइटिस जैसे लग रहा है, कैविटी का पेन है, टूथ एक जैसा लग रहा है, आई में बहुत भारी लग रहा है, स्वेलिंग हो गया है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम्स फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। बिकॉज ऑफ कंजंक्टिवल सफ्यूजन पेशेंट विल सफर फ्रॉम ब्लरी विजन, धुंधला धुंधला दिखेगा। ब्लेफराइटिस का मतलब क्या होता है? ब्लेफराइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ये तो पता ही है, ब्लेफेरा मीन्स आईलिड, आईलिड स्वोलन हो जाती है। विल सी इमेजेस, आईलिड के स्वोलन के इमेजेस देखेंगे। अब ब्लेफराइटिस की वजह से होता है टोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोसिस? टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। अगर आपने मेडिसिन में पढ़ा होगा एक डिजीज मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस फिजियो में पढ़ा है, पैथो में पढ़ा है, मेडिसिन में पढ़ा है। क्या होता है मायस्थीनिया ग्रेविस? मायस्थीनिया ग्रेविस होता है जिसमें हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो जाता है एंड आईलिड्स ड्रूप करने लगते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस टोसिस होता है उसमें। यहां पे टोसिस क्यों हो रहा है? ब्लेफराइटिस की वजह से, लिड इडीमा की वजह से, ठीक है। 8th पॉइंट, ब्लैक नेजल डिस्चार्ज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी भी पेशेंट बोले कि नाकमाथी काड़ो काड़ो कचरो निकले छे, सेंड द पेशेंट टू ENT सर्जन। रेडनेस ऑफ चीक, चीक अननेसेसरली रेड हो जाता है, पेन है, स्वेलिंग है और रेड है, राइट? वेरी कॉमन फीचर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। अब ये सब ना इनिशियल फीचर्स है, आई इन्वॉल्वमेंट होना, नेजल डिस्चार्ज होना, टूथ एक होना, आई फेशियल पेन, फेशियल नमनेस, ऑल ऑफ दीज आर इनिशियल सिम्टम्स। अगर हम यहाँ पे पेशेंट को डायग्नोज नहीं करते हैं तो पेशेंट विल कम टू यू विथ कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? तो ये आई नोज इन्वॉल्वमेंट की वजह से उधर म्यूकोरमाइकोसिस इन्वेड करने लगता है, स्प्रेड हो जाता है, एंड वो ब्लैक कलर का है, इसलिए ब्लैक एस्चार या ब्लैक स्कारिंग इज सीन ऑन द cheeks, in the eyes, on the eyelids, all of these areas. Black eschar. Second, hard palate. हार्ड पैलेट अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो हार्ड पैलेट के ऊपर आपको एक फिल्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस दिखेगा, ब्लैक कलर का। वो देखते हैं कैसे दिखता है इन सम टाइम। एंड अल्टीमेटली अगर वो राइनो अपने नोज पे उसको नहीं पकड़ा,
आईज पे उसको नहीं पकड़ा, सिम्टम्स पेशेंट दिए जा रहा है, आपने पकड़ा नहीं, तो अल्टीमेटली पेशेंट विल फ्रॉम नोज टू आई इट विल गो टू द ब्रेन, एंड ब्रेन में इट विल इन्वॉल्व फर्स्ट मेनिंजाइटिस होगा और फिर सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट? सो दिस इज प्रोग्रेशन ऑफ राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। डन। अब इमेजेस सी, ये आई देखो, आपको क्या क्या दिख रहा है इस आई में? ये आई में आपको दिख रहा है, क्या आपको रेडनेस दिख रहा है? हाँ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कंजंक्टिवाइटिस है? क्लियरली ऐसा लगता है कि कंजंक्टिवाइटिस है, ऐसा ही दिखता है कंजंक्टिवाइटिस में, कंजंक्टिवाइटिस जैसा ही है, बट दिस पेशेंट हैज म्यूकोरमाइकोसिस, बट लग रहा है कंजंक्टिवाइटिस जैसा। देखो ऐसे ग्लासी शाइन है आई के ऊपर, ग्लासी शाइन, वो ग्लासी शाइन, ग्लॉसी फिनिश जो है ना आई के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ इडिमा। आई कंजंक्टिवा स्वोलन है एंड उसमें रेडनेस है, वाटरिंग भी दिख रहा है आपको, कंजंक्टिवाइटिस ही लग रहा है बट है म्यूकोर। तो इन दीज सिनेरियोज, इन दिस कोविड टाइम्स, कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट शुड बी सस्पेक्टेड फॉर म्यूकोर डायरेक्टली। ये देखो आपको सेकेंड इमेज, क्या दिख रहा है आपको? लिड इडिमा, देयर इज इडिमा ऑफ द लिड, इसको ही हम बोलते हैं ब्लेफराइटिस, इडिमा ऑफ द लिड, ब्लेफराइटिस। तो अगर कंजंक्टिवाइटिस पे पेशेंट नहीं रुका तो पेशेंट लिड इडिमा कैसे आएगा? ब्लेफराइटिस। एंड ऐसा लिड जो इतना स्वोलन है, क्या वो आंख खोल पाएगा? नहीं, तो द लिड्स विल ड्रूप डाउन, लिड्स नीचे की तरफ गिरेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं टोसिस, वो आई ओपन ही नहीं कर सकता, टोसिस, राइट? देन ये सो आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन बहुत ही थिक है, वेरी थिक सिक्रीशन, इतना थिक सिक्रीशन है दैट आईलिड्स चिपक जाता है। कंजंक्टिवाइटिस जब होता है लोगों को, आपको याद होगा, आपको अगर कभी हुआ रहेगा तो आईलिड्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मॉर्निंग में ओपन करने में बहुत स्टिकी लगता है, ये वही चीज है, बट बहुत थिक सिक्रीशंस है, फंगल ग्रोथ है, तो ये थिक सिक्रीशंस एंड फंगल ग्रोथ की वजह से लिड इडिमा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू ओपन द आईज। ओके फाइन, लेट्स गो टू चीक एंड नोज। यू कैन सी वेरी क्लियरली, क्या दिख रहा है आपको? ये लेट स्टेज में आई है पेशेंट, आपको दिख रहा है ब्लैक S4, ब्लैक S4 कहां जा रहा है? चीक इन्वॉल्व है, लिप्स इन्वॉल्व है, आईलिड इन्वॉल्व है, नोज इन्वॉल्व है, बेचारी शी कैन नॉट ईट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, सो ट्यूब हैज बीन पुट, ये क्या है? राइल्स ट्यूब है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब, इससे फीडिंग देना पड़ता है। पेशेंट हैज नॉट is not able to feed, is not able to eat. Now this is a very interesting image. ये है nasal endoscopy, नाक में दूरबीन नाखीने जांच करिए छे। So nasal endoscopy में what can you see? You can see that nasal endoscopy में दूरबीन से आपको दिख रहा है, बेसिकली एंडोस्कोप से दिख रहा है, ब्लैक म्यूकस, ब्लैक ग्रोथ, राइट? ब्लैक ग्रोथ, नेजल एंडोस्कोपी, ब्लैक ग्रोथ नेजल एंडोस्कोपिक में दिख रहा है आपको, वेरी कॉमनली सीन विद म्यूकोरमाइकोसिस। नेक्स्ट, राइनाइटिस, राइनल इन्वॉल्वमेंट, नोज इन्वॉल्वमेंट, वेरी क्लियरली यू कैन सी, एंड यू कैन सी दिस फंगस इज इन्वेजिव, मतलब वो एक तो इन्वेड भी करता है और टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी करता है। यू कैन सी नोज सिर्फ ब्लैक नहीं हुआ है, इट्स नॉट जस्ट स्किन हैज बिकम ब्लैक, the nose has been slowly eaten up by the fungus. nose का skin नहीं है, देखो यहाँ पे मैं वो निकाल देता हूँ मार्क्स, clearly if you see nose का यहाँ पे deficient है skin, देखो skin has been eaten, ये redness, पहले देखो, पहले एक margin दिख रहा है आपको, ये this margin is red, उसके अंदर it is black. Remember this point, म्यूकोरमाइकोसिस हम रेड फंगस, ब्लैक फंगस बोलते हैं, ब्लैक लेट स्टेज में होता है, जब फंगल ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन में रेडनेस होता है, फिर वो ब्लैक होता है। पेशेंट को लगेगा कि ब्लैक फंगस है तो ब्लैक दिखना चाहिए, नहीं, ब्लैक नहीं दिखता, स्टार्टिंग में रेड दिखता है, और जब ब्लैक दिखने लगता है तब वो एरिया को निकालना पड़ता है अपने को। सो ऑलवेज कैच द डिजीज अर्ली,
कंजंक्टिवाइटिस के स्टेज पे कैच करो, राइनाइटिस के स्टेज पे कैच करो, ब्लैक सिक्रीशंस नोज से निकल रहा है तब कैच करो, टूथ एक, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स कम विद टूथ एक, उधर कैच करो पेशेंट को, अदरवाइज द पेशेंट विल कम विद दिस एंड उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टू रिमूव दैट एरिया, राइट, बिकॉज द फंगस विल ग्रो फर्दर. हार्ड पैलेट जो मैं बोल रहा था लेट स्टेजेस में आता है. हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट दिख रहा है आपको, टीथ दिख रहा है, अपर टूथ दिख रहा है आपको, उसमें एक ग्रोथ दिख रहा है आपको, वो जो ब्लैक एरो से मार्क्ड है, वो ग्रोथ का मार्जिन ऐसा है, राइट. दिस इज हार्ड पैलेट का ग्रोथ. हार्ड पैलेट में म्यूकोर लेट स्टेजेस है ये. अगेन हार्ड पैलेट म्यूकोर, इसमें आपको ज्यादा कैरेक्टरिस्टिकली ब्लैक फंगस दिख रहा है. But because it's black, remember, because it's black, black means late stage. Black means you are already very late, right? Okay. And extensive mucormycosis. बहुत extensive invasion है यहाँ पे. आपको दिख रहा है this must have been a neglected patient. Neglected. At this moment, our healthcare system is completely collapsing. At this moment, हम सिर्फ अर्बन पे ही फोकस कर पा रहे हैं. रूरल एरियाज में कितने सारे पेशेंट्स को कोविड है, हम वी आर नॉट एबल टू रीच देम. उधर कितने सारे लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होगा, वी विल नॉट नो आल्सो. एंड वो नेग्लेक्टेड केसेस रूरल एरियाज में से ऐसे प्रेजेंट होके आएंगे इन द फ्यूचर, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिवेंट इफ वी डू नॉट नो द पेशेंट. अगर पेशेंट नहीं आएगा, पेशेंट को वो लेबरर है, फार्म में है, फार्म का काम करना है, पैसे कमाने हैं, पेशेंट विल नॉट कम टू द हॉस्पिटल. इफ द पेशेंट डज नॉट कम टू द हॉस्पिटल फॉर, लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लैक है, निकल जाएगा, पेशेंट विल नॉट कम टू यू एंड देन द पेशेंट प्रेजेंट्स लाइक दिस विद एक्सटेंसिव म्यूकोरमाइकोसिस. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सटेंसिव म्यूकोरमाइकोसिस? सेरेब्रल स्प्रेड. ये एमआरआई इमेजेस है ब्रेन के, सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट के. आपको दिख रहा है यहाँ पे जो व्हाइट एरियाज है ना, जिसको हम इंटेंस एरियाज बोलते हैं. एमआरआई में हम यूज करते हैं वर्ड हाइपर इंटेंस. हाइपर इंटेंस एरियाज दिख रहे हैं आपको. देखो ये रहा, ये देखो आई बॉल कंप्लीटली इन्वॉल्व. ये आई बॉल को आप नीचे देखोगे ना, तो ये देखो, ये नॉर्मल आई बॉल है, ये नॉर्मल साइड है, ये अफेक्टेड साइड है, ये डिजीज साइड है. ये डिजीज साइड में आपको दिख रहा है फंगल ग्रोथ जो व्हाइट की तरह दिख रहा है. सी इट इज इन्वॉल्विंग, इट इज गोइंग डीपर एंड इट इज इन्वॉल्विंग द ब्रेन matter. Usually it first involves the cavernous sinus. आपको याद होगा एनाटॉमी में cavernous sinus आपने पढ़ा है, तो cavernous sinus इन्वॉल्व होता है पहले, राइट. यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ऑप्टिक नर्व इज इन्वॉल्व. जैसे ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाएगा ना, ऑप्टिक नर्व, द पेशेंट विल बिकम विजुअली इंपेयर्ड. Patient will become visually impaired. Optic nerve जैसे involve हो जाएगा, patient will become visually impaired. Patient will not be able to see, right? So that is optic nerve involvement. Okay. Cavernous sinus and brain abscess. This fungus can lead to, अगर वो fungus brain में जाता है ना, brain का एक quality होता है कि brain में हमेशा कोई भी चीज necrosis जो होती है, आपने याद होगा आपको पैथो में दो मेन टाइप ऑफ नेक्रोसिस होते हैं, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. ब्रेन में कोई भी इंफेक्शन लिक्विफैक्शन करता है, यानी ब्रेन का टिश्यू डिसॉल्व हो जाता है. वही चीज हो रही है यहाँ पे, फंगस इंफेक्शन हो रहा है एंड ब्रेन का टिश्यू डिसॉल्व हो रहा है. यू कैन सी दिस इज एन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? न्यूरो ओटी करना पड़ेगा, न्यूरो सर्जरी करके वो ब्रेन का टिश्यू एक्सरसाइज करना पड़ेगा. अब वो ब्रेन का टिश्यू जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो तो पेशेंट का जाएगा, राइट, बट दैट इज व्हाट वी हैव टू डू टू ट्रीट द पेशेंट, अदरवाइज द पेशेंट विल डाई, इट विल बी फेटल, राइट. सो वो टिश्यू निकालना पड़ेगा, इसके लिए न्यूरो सर्जरी इन्वॉल्व होगा. दिस इज वन ऑफ द डिजीजेस जहां पे एवरीबडी इज इन्वॉल्व. मेडिसिन इज इन्वॉल्व, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इज इन्वॉल्व बिकॉज ड्रग्स देने हैं. डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी इज इन्वॉल्व बिकॉज न्यूरो सर्जरी करना है. ENT is involved because ear, nose, throat है. Ophthalmology is involved, eye involvement है. Plastic surgery is involved. ये सब आपने जो डिस्ट्रक्शन किया, निकाल के टिश्यूज को रिकंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा. This is one fungus which is creating a problem in every department, right, of the body. अब इसका ट्रीटमेंट पे आते हैं. We'll come to the last part of our discussion, the treatment. But the treatment is basically a three-pronged approach. 3 prongs है उसके. 3 काम करने अपने को. पहला काम, we have to control the risk factors.
अगर पेशेंट डायबिटीज से आता है तो कॉमन सेंस की बात है, पहले चीज है डायबिटीज कंट्रोल करो उसका, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एंटी फंगल ट्रीटमेंट, फंगस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स दो, जिसको हम एंटी फंगल बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, एंटी फंगल इज दी, वी कैन से एंटीबायोटिक ऑफ फंगस। एंड थर्ड, सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट। अगर फंगस इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, अगर सिर्फ रेडनेस है, कंजंक्टिवाइटिस है, तो सिर्फ ड्रग से ठीक हो जाएगा, नो सर्जरी। बट अगर ब्लैक एस्चार फॉर्मेशन है, साइनसिस इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सब सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा, तो सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। Now, how do you control risk factors? To control risk factors, you have three things. देखो, first हमने risk factors क्या क्या बोले थे? डायबिटीज मेलाइटस बोला था, हाँ बोला था। स्टेरॉइड बोला था, हाँ बोला था। और तीसरी क्या चीज बोली थी? एसिडोसिस बोला था हमने। एसिडोसिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। तो क्या करो? डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करो, गिव एग्रेसिव कंट्रोल। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 140 से ब्लड ग्लूकोज ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अग्रेसिव कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। देन टेपर एंड स्टॉप द स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो है अगर चल रहा है तो उधर के उधर उसको रोक दो, स्टेरॉइड और नहीं देना है, राइट? एंड थर्ड, एसिडोसिस। एसिडोसिस ठीक करने के लिए अगर ब्लड का पीएच कम है तो हम एसिडोसिस ठीक करेंगे। कैसे करते हैं अपने एसिडोसिस ठीक? वी गिव सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्ब देते हैं, बाइकार्ब करेक्शन देते हैं। तो बाइकार्ब करेक्शन देंगे, बाइकार्ब करेक्शन देने से एसिडोसिस ठीक करेंगे। So these are the three control of the risk factors. सबसे पहले जो कॉज कर रहा है, जो प्रमोट कर रहा है फंगस का ग्रोथ, उसको कंट्रोल करो। सेकेंड, एंटी फंगल ट्रीटमेंट। 3 एंटी फंगल्स है हमारे पास आर्सेनल में, हमारे पास 3 वेपन्स है। एम्फोबी, एम्फोटेरिसिन बी, ये नाम सबको पता होगा एट दिस मोमेंट, बिकॉज सब जगह पहले था टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर, इटोलिजुमैब, ये सब हमको इसके लिए हम भाग रहे थे। अब हम भाग रहे हैं एम्फोटेरिसिन बी के लिए, बिकॉज वो शॉर्ट सप्लाई में, और जो चीज शॉर्ट सप्लाई में होनी चाहिए थी स्टेरॉइड, वो तो अवेलेबल है, उस वजह से तो ये सब हुआ है। एम्फोटेरिसिन बी, दिस इज द फर्स्ट लाइन एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग टू ट्रीट म्यूकोरमाइकोसिस इज एम्फोटेरिसिन बी। उसके अलावा 2 और ड्रग्स है, एक है आइसावुकोनाजोल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेम है बट सुन लो, आइसावुकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, दीज 2 आर एंटीफंगल्स। ये लेस इफेक्टिव है, एम्फोटेरिसिन बी इज मोर इफेक्टिव, so they are not used. Posa and isovuconazole are not commonly used, plus they are very costly. Amphotericin B is thoda sa cheaper. It is, yes, still on the expensive side only, it's not very cheap. Amphotericin B is expensive, but isavuconazole and posaconazole are much more expensive, right? So amphotericin B ही देते हैं, and as it is, it's the first line. So amphotericin B. अब एम्फोटेरिसिन बी जो है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। इट इज ऑलवेज गिवन इन डेक्सट्रोज। अगर आपका कोई भी पेशेंट होगा ना, आपको पता होगा, वो एक पाइंट लेते हैं, वो पाइंट होता है 5D का, 5% डेक्सट्रोज, और उसमें हम इंजेक्ट करते हैं एम्फोटेरिसिन बी, और वो पाइंट देते हैं हम पेशेंट को, 5D में देते हैं, 5% डेक्सट्रोज। ओके, 3 फॉर्म्स आते हैं एम्फोटेरिसिन बी के। एक होता है एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट, दूसरा होता है लायोफिलाइज्ड एम्फोटेरिसिन बी, एंड द थर्ड वन इज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। सो देयर आर three drugs, right? Now, what is more important? What is important in medicine is not to know what to use, but to know what not to use and why not to use. क्या यूज करना है हमको पता नहीं होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या है, इसलिए क्या यूज नहीं करना चाहिए। सो एम्फोटेरिसिन बी के साइड इफेक्ट्स क्या है? पहला जो साइड इफेक्ट है, जो कोई भी ड्रग का हो सकता है, आप कोई भी ड्रग को इंजेक्शन से थ्रू दोगे तो उसमें फीवर आ सकता है, बिकॉज ड्रग का रिएक्शन हो सकता है, वो चिल्स हो सकते हैं, ठंडी लग सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है? तो ये तो हो ही सकता है, ये तो कोई भी ड्रग का प्रॉब्लम है। एम्फोटेरिसिन बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बड़ा वर्ड है, लेट्स ब्रेक इट अप।
नेफ्रोटॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक, राइट, harmful. Nephro means kidney. So it's a nephrotoxic drug, amphotericin B, which is used to treat mucormycosis, is a drug which affects the kidney. Okay, so that is nephrotoxicity. Then it can cause hypokalemia. Potassium levels body में कम हो सकते हैं. It can cause itself acidosis. वो खुद acidosis कर सकता है. जिससे म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ता है वो ये खुद कर सकता है, राइट. इसीलिए हमको हमेशा पीएच मॉनिटरिंग करना चाहिए पेशेंट का, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना चाहिए पेशेंट का, पोटेशियम मॉनिटरिंग करना चाहिए पेशेंट का. और किडनी के लिए हम 2 मार्कर्स यूज करते हैं, हमेशा याद रखना, सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिया. ये 2 चीजें हम यूज करते हैं टू नो किडनी इंजरी हो रही है कि नहीं. बिकॉज किडनी इंजरी जैसे जैसे होती है वैसे वैसे क्रिएट लेवल्स बढ़ते हैं, यूरिया लेवल्स बढ़ते हैं, राइट. सो साइड इफेक्ट्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, अगर मैं if I want to tell you one side effect, that one side effect is nephrotoxicity, because it injures the kidney injury होती है, right. Interesting thing is, not interesting, rather hurtful is the fact कि देखो इस पेशेंट का तो is very unlucky, because सबसे पहले उस पेशेंट को हुआ COVID-19, severe COVID-19, जिस वजह से he was kept in ICU, he was battling for life, right. ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था, lungs was affected. उसकी वजह से स्टेरॉइड देने की वजह से जो देना पड़ा, स्टेरॉइड नहीं दिया उस वजह से ही सेव हुआ है. स्टेरॉइड इज अ लाइफ सेविंग ड्रग ऑफ कोविड-19. स्टेरॉइड इज द लाइफ सेविंग ड्रग ऑफ कोविड-19. ये डिस्कशन से ऐसा मत सोचना कि स्टेरॉइड इज हार्मफुल. स्टेरॉइड इज हार्मफुल बट इट इज लाइफ गिवर फॉर कोविड-19. तो कोविड-19 की वजह से हमने स्टेरॉइड दिया, उस वजह से पेशेंट को हो गया म्यूकोर. अब वो म्यूकोर हुआ तो हमने सर्जरी की, आईबॉल निकाला, हमने मैक्सिलरी साइनस को ओपन करके उसको साफ किया, वो सब उसका स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंड उस वजह से हमने एम्फोटेरिसिन बी दिया, उस वजह से किडनी इंजरी हो रही है पेशेंट को. तो पेशेंट विल कैन गो इनटू किडनी फेलियर अगर हमने ठीक नहीं किया इस पेशेंट को बराबर. सो पेशेंट स्टार्टेड ऑफ विद कोविड, went into mucor, and now is suffering kidney injury, right. So it is becoming a very difficult problem to solve. The pandemic is creating more and more problems only. हम कुछ ठीक करने जाते हैं, कोविड ठीक करने के लिए स्टेरॉइड दिया और उससे कोविड ठीक हो गया बट म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है. म्यूकोरमाइकोसिस ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दिया, उस वजह से म्यूकोरमाइकोसिस ठीक हो रहा है बट किडनी फेलियर में पेशेंट जा रहा है. फिर किडनी फेलियर के हम डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ेगा. सो इट इज क्रिएटिंग ए डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. बट दैट इज व्हाट इट इज. इट ऑल स्टार्टेड विद कोविड-19, राइट. सो दैट इज अ साइड इफेक्ट. एंड वन साइड इफेक्ट, लास्ट वन, इज अनीमिया. क्या होता है, एम्फोटेरिसिन बी बोन मैरो को सप्रेस कर देता है. तो बोन मैरो रेड ब्लड सेल बनाना होता है, तो रेड ब्लड सेल नहीं बनता है, रेड ब्लड सेल नहीं बनता है तो अनीमिया हो जाता है. सो these are the 2 side effects which I want you to remember is nephrotoxicity and anemia. इसीलिए अगर आप एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हैं तो क्या क्या मेजर्स याद रखने हैं आपको. पहला, आरबीएस मॉनिटरिंग, आरबीएस देखते रहने का, रैंडम ब्लड शुगर वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, सीरम पोटेशियम लेवल्स चेक करते रहने के. थर्ड, सीरम क्रिएट. फोर्थ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. एंड फिफ्थ is hemoglobin. Fifth is hemoglobin. ये 5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है when you are treating, when you are giving amphotericin B. RBS देखो, इंसुलिन देना पड़ेगा शायद, पोटेशियम लेवल्स देखो, क्रिएटिनिन एंड यूरिया लेवल्स देखो बिकॉज किडनी इंजरी हो रहा है कि नहीं, एंड हीमोग्लोबिन देखो बिकॉज आपको अनीमिया राइट टाइम पे पकड़ना पड़ेगा वरना पेशेंट विल हैव अनीमिया. वो और एक एड रिस्क फैक्टर हो गया. लास्टली सर्जिकल में क्या करते हैं हम लोग, हम नेजल एंडोस्कोपी करते हैं. नेजल एंडोस्कोपी करके वी सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज. आफ्टर सीइंग वी यूज माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स, open up the sinuses and clean the sinuses. That is known as debridement. Debridement in a way is cleaning. Clean क्या करते हैं,
क्लीनिंग द नेक्रोटिक टिश्यू. जो टिश्यू मर गया है, जो टिश्यू नेक्रोटिक हो गया है, डेड डीकेइंग है, जिसके ऊपर फंगस ग्रो करता है, बिकॉज फंगस ग्रोज ऑन डेड एंड डीकेइंग टिश्यूज, उसको हमको क्लीन करना है. सो दैट इज सर्जिकल डिब्राइडमेंट, राइट. सो नेजल एंडोस्कोपी करना है. मॉडिफाइड डेंकर्स अप्रोच एक अप्रोच है, आई एम जस्ट राइटिंग द नेम डाउन, जिससे हम मैक्सिलरी साइनस को क्लीन करते हैं. देन ऑर्बिट अगर इन्वॉल्व हो गया तो हमको ऑर्बिटल डीकंप्रेशन करना पड़ेगा. हमने बहुत पहले देखे थे, कुछ बोन्स देखे थे, या कहा गए, ये रहे, ये बोन्स देखे थे हमने. ये बोन्स फॉर्म दी ऑर्बिट. हम क्या करते हैं, ऑर्बिट में स्वेलिंग हो जाता है ना, तो ये मतलब आईबॉल में जब स्वेलिंग हो जाता है तो ऑर्बिट तो बोन है, वो तो बड़ा छोटा नहीं होता, बट अंदर का आईबॉल बड़ा हो रहा है. सो टू क्रिएट, वो प्रेशर जनरेट करता है, एंड दैट प्रेशर कंप्रेसेस द ऑप्टिक नर्व. तो ये पूरा प्रोसेस ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आईबॉल स्वेलिंग हो जाता है. व्हेन आईबॉल स्वेल्स अप, इट प्रेसेस अपॉन द ऑर्बिट, बट ऑर्बिट बड़ा नहीं होगा बिकॉज वो बोन है. तो हमको ऑर्बिट तोड़ना पड़ेगा. वील हैव टू ब्रेक द ऑर्बिट. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल डीकंप्रेशन. तो हम यहां से नेजल एंडोस्कोपी से ऑर्बिट तक पहुंचते हैं और वहां पे हम ऑर्बिट को तोड़ते हैं. उसके बोन्स, यूजुअली हम ये जो मैक्सिलरी बोन है और लेक्राइमल बोन है, इसको हम तोड़ते हैं. उसको तोड़ के हम ऑर्बिट के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, वो आईबॉल थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड हो सके. बिकॉज वो नहीं एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने से हम प्रिवेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस रिजल्ट की वजह से पेशेंट विल गो इनटू लॉस ऑफ विजन, राइट. एंड लास्टली, जो लास्ट में हमने जो लिखा है उसमें ऑर्बिटल डीकंप्रेशन, सॉरी, ऑर्बिटल एक्सेंटरेशन. ऑर्बिटल एक्सेंटरेशन मींस रिमूवल ऑफ आईबॉल. हम आई निकाल देंगे. क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, राइट. it's the last resort. Obviously we want to prevent this. eyeball remove करना should always be the last resort, but करना पड़ रहा है. क्यों? Because once the eye is involved and it is not getting controlled by amphotericin B, the infection will spread to the brain. तो उससे अच्छा है आई बॉल निकाल दो, so that brain नहीं इन्वॉल्व होगा, तो patient will at least not have vision but will live, right. वरना patient will die. So that is more important. इसलिए हम ऑर्बिट निकाल देते हैं, but only if it is not controlled with amphotericin. पहले ऐसा प्रोटोकॉल था but prophylactically सब में आई बॉल निकाल दो, चांस ही लेना नहीं है ब्रेन इन्फेक्शन का. बट नाउ वी नो दैट amphotericin B is working well. So amphotericin B देके you can control the infection. So when we control the infection, then eyeball is not removed. But if the patient already has lost the vision because of optic nerve involvement, तो निकाल देते हैं ऑर्बिट को, right. That is orbital exenteration. And lastly, this is the end of my discussion. Take home messages. इस पूरे डिस्कशन से मेरे को आपको सिर्फ 6 पॉइंट बताने हैं. 6 पॉइंट्स. म्यूकोरमाइकोसिस जाने दो, वो क्या है जाने दो, रिस्क फैक्टर्स जाने दो. 6 points which everyone should remember always. First, patients are not aware that they are diabetic at the time of mucormycosis. इसका मतलब जब पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस होके आता है तो पेशेंट को पता नहीं होता है वो डायबिटिक है. इसकी क्या इंप्लीकेशंस है? इसकी इंप्लीकेशंस ये है दैट हमको डायबिटीज का टेस्टिंग प्रमोट करना चाहिए. सी, this pandemic has been a lesson for us. We should take those lessons from this pandemic. The first lesson is always get yourself tested for diabetes. अगर family history है तो definitely get tested for diabetes. And it's not a big deal. सिर्फ 8 घंटे फास्ट करके नेक्स्ट डे फास्टिंग ब्लड शुगर लेना होता है. वो अगर आप लिपिड प्रोफाइल कर रहे हो तो भी आप FBS करोगे. So it's not a big deal. Always get tested for diabetes. Because जब डायबिटीज आपको पता नहीं होता है तो पेशेंट comes with complications. So always ensure that आप yearly diabetes testing करो. Second take home message. Steroid का overuse, even in mild cases. I'll just give you some name of drugs. Methylprednisolone, Predmet, Iverpred, Visolone.
अगर आपके पेशेंट्स आपके रिलेटिव है जिनको आपको पता है ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन्ड है, जिनमें आपको पता है दैट फीवर नहीं है, माइल्ड केसेस है कोविड के, आप विदाउट एनीबॉडीज कंसल्टेशन स्टेरॉइड का ड्रग खुद से निकाल दो. यू आर गोइंग टू गिव द पेशेंट अ बेटर लाइफ. अगर आप माइल्ड केसेस में किसी को आपको लग रहा है कि स्टेरॉइड, पेशेंट माइल्ड है, सैचुरेशन मेंटेन है, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, और फिर भी अगर किसी डॉक्टर ने उसको स्टेरॉइड पे स्टार्ट किया है, आप खुद जाके वो स्टेरॉइड उसके हाथ से निकालो. स्टेरॉइड की वजह से वो हाइपरग्लाइसीमिया में जाएगा, उस वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होगा, और मैंने आपको जो समझाया वो सब होगा. थर्ड, स्टेरॉइड इन द फर्स्ट 5 days ऑफ कोविड-19. अगर पेशेंट का डायग्नोसिस कोविड का होता है मंडे को और ट्यूसडे से पेशेंट डॉक्टर उसको स्टेरॉइड पे स्टार्ट कर देता है, तो आप बोलो कि ये 5 दिन तक नहीं लेना है, 5 दिन के बाद लेना है. ऑलवेज स्टार्ट स्टेरॉइड आफ्टर द फर्स्ट 5 days ऑफ कोविड-19, never in the first 5 days. This is the third take home message. Fourth, there should be a high degree of suspicion for mucormycosis. As a doctor, as a student of medicine, always realize that small symptoms should be taken seriously. Not all diseases, but mucormycosis में definitely it should be taken into consideration. छोटे छोटे symptoms, eye में watering, eye में redness, eye में swelling, टूथ में एक, ठीक है, आई का बोल दिया, आई रेडनेस, आई स्वेलिंग, लिड इडीमा, टूथ एक, फेस नंबनेस, फेस पेन, हेडेक, नॉट सिंपल वाला हेडेक नहीं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे नहीं, अनएक्सप्लेन्ड हेडेक, राइट. ऑल ऑफ दीज आर अर्ली सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस. वन शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन. फिफ्थ पॉइंट, वो मैंने वही बता दिया, discharge from the eyes, swelling of the eyelids, facial pain, facial numbness, toothache, very very important points for diagnosis of mucormycosis. आप थोड़ा over cautious रहो. Take the patient to the hospital, get tested. Negative आए तो अच्छा ही है, but अगर गलती से positive आ गया तो आपको early treatment मिल सकता है. That is most important. And fifth, special care should be taken with diabetics with regular RBS checkup. आप उनको स्टेरॉइड दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप उनको कोविड है नहीं है, डजेंट मैटर. अगर वो इस पॉइंट पे डायबिटिक है, एटलीस्ट वंस इन 3-4 days और लेट अस से वंस इन अ वीक ग्लूकोमीटर से रैंडम ब्लड शुगर चेक करना चाहिए. 2 hours आफ्टर मील, 2 घंटे खाने के बाद, 2 घंटे के बाद आप आरबीएस देखो, वो 200 से ऊपर हो, गो टू द डॉक्टर. गो टू द डॉक्टर. अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो आप ये टेस्ट भी लिख के दे सकते हो उनको, HbA1c. बिकॉज HbA1c क्या है? इट गिव्स यू ग्लूकोज कंट्रोल ओवर 3 months. 3 months तक आपका ग्लूकोज कंट्रोल कैसा है वो देखना, और इंश्योर दैट इट इज लेस देन 6.5. अगर डायबिटिक पेशेंट में HbA1c इज लेस देन 6.5, गुड. 6.5% होता है, गुड कंट्रोल, राइट. And if RBS is less than या PP2BS is less than 200, very good, right? So no issues. So these are the 6 points. I'll just repeat. First, majority of patients who are diabetic are not aware of diabetes. इसीलिए ये future के लिए है. हमेशा get your patients tested for diabetes at least once in a week or once in a year. Second, steroid. ओवर यूज नहीं करना चाहिए, माइल्ड केसेस में स्टेरॉइड देना ही नहीं चाहिए. थर्ड, अगर स्टेरॉइड दिया जा रहा है, चलो कोई डॉक्टर का पर्सनल बिलीफ है, दे रहे, तो एवरी फर्स्ट 5 days नेवर गिव स्टेरॉइड्स. फोर्थ, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन फॉर म्यूकोरमाइकोसिस. व्हाट आर द सिम्टम्स? वो फिफ्थ में लिखा है, डिस्चार्ज फ्रॉम आईलिड्स, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, फेशियल पेन, फेशियल नमनेस, टूथेक. एंड सिक्स्थ पॉइंट, special care should be taken to check up RBS in all patients of diabetes. कोविड है, कोविड नहीं है, स्टेरॉइड ले रहे, स्टेरॉइड नहीं ले रहे, इस टाइम पे करना ही चाहिए. बिकॉज देयर आर पेशेंट्स हु have not suffered COVID, have not taken steroids, and yet they are coming with म्यूकोर. मतलब सिर्फ डायबिटीज और म्यूकोर के साथ आ रहे, राइट. तो ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, राइट.
एंड एट द एंड एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, स्टेरॉइड इज नॉट द डेविल. इस केस में स्टेरॉइड इज द पॉजिटिव, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट स्टेरॉइड को बैड नेम मत दो. स्टेरॉइड इज द लाइफ सेवर. अगर कोविड का मॉडरेट या सिवियर केस का पेशेंट है, अगर वो इंप्रूव हो रहा है, तो इन टूडेज डेट द पेशेंट इज इंप्रूविंग ओनली बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स. सो स्टेरॉइड इज अ वंडरफुल ड्रग, बट वो स्टेरॉइड के साथ हमको हमेशा ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना चाहिए. Uncontrolled diabetes leads to mucormycosis. Steroid does not lead to mucormycosis. Uncontrolled sugar leads to mucormycosis. वो prevent करो, right? So with this, I conclude my discussion. This was all about mucormycosis.